سے نکل کے اگر آپ شمال کی سمت چلیں تو آپ کو ایک اور عمارت نظر آتی ہے. اسے عرف عام میں 12 دری کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 12 دری نہیں ہے. اس کے 3 در سامنے کی جانب، 3 در پیچھے کی جانب اور 2 در دائیں بائیں جانب ہیں. اس طرح کل در 10 بنتے ہیں. اگر یہ 12 ہوتے تو واقعی 12 دری کہلاتی. فرح بخش کے تختے پر یہ عمارت عین شمال کی سمت واقع ہے. اس کے پیچھے شمال کی سمت ہی ایک آبشار ہے، اس کے آگے ہی شاہ جہان کا تخت تھا، اور پھر اس کے آگے حیات بخش تختہ کا وہ تالاب ہے جس کی وجہ سے یہ باغ بہت مشہور ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہی سمر پیویلین یا ہوا محل ہے. آئیے اس کا آج جائزہ لیتے ہیں. چونکہ اس سمر پیویلین کے شمالن جنوباً 3 آرچز اور شرقن غرباً 2 آرچز ہیں، اور ہر آرچ کے پیچھے ایک کوریڈور ہے. یہ تمام کوریڈور ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو 6 بیز کو جنم دیتے ہیں. یوں کہیے کہ یہ تمام کی تمام 12 دری یا سمر پیویلین 6 بیز یا 6 کمروں پر مشتمل ہے، اور ان کو مختلف پلرز یا ستونوں سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. تمام 12 دری ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم جو زمین سے تقریباً 9 انچ بلند ہے اس پہ کھڑی ہے، اور اس کے گردا گرد ایک بارڈر بنا ہوا ہے. اوریجنلی اس ہوا محل کی 10 کی 10 آرچز جو ملٹی فائل آرچز ہیں وہ تمام کی تمام بڑی سائز کی تھیں، جیسا کہ یہاں آپ درمیانی آرچ کو دیکھ سکتے ہیں. رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں اس آرچ کو اور اس کے پیچھے جو آرچ ہے ان دونوں کو چھوڑ کر باقی تمام آرچز کو چھوٹا کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے یہاں سے تمام سنگ مرمر اور یہاں کی ڈیکوریشن اتاری تو یہ بلڈنگ کافی حد تک مجروح ہو گئی. لہٰذا اس نے اس بلڈنگ کو ری انفورس کرنے کے لیے باقی آرچز میں مزید اس طرح کی میسنری بھری اور ان کے اوپر چھوٹی آرچز بنا دی. یہ تبدیلی اس وقت سے آئی. ستونوں کے کونوں پر آپ کو ڈیکوریٹو موٹیوز نظر آتے ہیں جو ایک کالم کی شکل میں ہیں. یہ کالم کی بیس ہے، یہ اس کا کالر ہے. یہ اوپر 2 موٹیو ہیں، ایک پتے کا موٹیو ہے اور دوسرا چھوٹا سا والیوٹ. یہ کنسٹرکشن سکھ دور میں ہوئی جب آرچز کو چھوٹا کیا گیا. اوریجنلی شاہ جہان کے دور میں بھی ایسی ہی کنسٹرکشن تھی. اس کنسٹرکشن کو ہم انگیج ڈیکوریشن کہتے ہیں. باقی جو کنسٹرکشن اس کے فرنٹ پہ پائی جاتی ہے وہ ان پینلز پر مبنی تھی، اور ان میں پیٹراڈورا اور پینٹڈ ورک پایا جاتا تھا جو اب باقی نہیں رہا. نیچے جو آپ ڈیڈوز دیکھ رہے ہیں یہ بھی رنجیت سنگھ کے زمانے میں تعمیر ہوئے. یہ کوالٹی میں انتہائی ناقص ہیں اور اس بلڈنگ کا اصل حصہ نہیں. عمارت کے اوپر کی جانب پیراپٹ سے ذرا نیچے بریکٹس کی ایک طویل قطار ہے. یہ قطار عمارت کے چاروں جانب گھوم گئی ہے. یہ بریکٹس تمام کی تمام سرخ سینڈ سٹون سے تعمیر کی گئی ہیں اور عمارت سے زاویہ قائمہ بناتے ہوئے باہر نکلتی ہیں. البتہ کونے پہ جو ایک بریکٹ ہے وہ ڈائیگنلی باہر آتی ہے اور اس کا ڈیزائن بھی تھوڑا سا مختلف ہے. یہ بریکٹس 2 ڈیکوریشنز پر مبنی ہیں. ایک تو اندر کی جانب مربع شکل نظر آتی ہے اور دوسری باہر کی جانب چھوٹے بڑے سکرولز یا والیوٹس بنے ہوئے ہیں. انہی بریکٹس کے اوپر سرخ سینڈ سٹون کا بنا ہوا چھجا ہے. اگر آپ دور سے اس عمارت کو دیکھیں تو اس چھجے کے اوپر آپ کو گول گول دائرے نظر آتے ہیں. یہ تمام دائرے اندر سوراخ رکھتے تھے اور یہاں رسے باندھنے اور سائبان لٹکانے کے کام آتے تھے. ابھی میں نے ایک آرکیٹیکچرل ٹرم استعمال کی تھی بے کی. میں سمجھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم اس سمر پیویلین کے اندر جائیں میں آپ کو بتا دوں کہ بے ہوتی کیا ہے. بے ہم اس جگہ کو یا اس سیل کو کہتے ہیں جس کے چاروں جانب ستون ہوں. مثال کے طور پر یہاں اگر آپ میرے ساتھ آئیں اور یہاں کھڑے ہو کر اس احاطہ کا جائزہ لیں تو 2 ستون میرے سامنے اور 2 میرے دائیں بائیں پیچھے نظر آ رہے ہیں. ان چاروں ستونوں کے درمیان کا جو علاقہ یا حصہ ہے وہی ایک بے کہلاتا ہے. اس سمر پیویلین میں اس قسم کے 6 بے ہیں. اب یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ کیونکہ اس کے کل در جو ہیں وہ 10 ہیں تو ان میں سے 7 دروں کے تو باہر کوئی جالی یا دیوار نصب نہیں کی گئی بلکہ وہ تمام در اندر اور باہر آنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. البتہ شمال کی جانب جو 3 در ہیں ان کے آگے ایک جالی دار فینس لگا دی گئی ہے کیونکہ اس کے آگے ہی حیات بخش کا تختہ ہے جس کا لیول اس سے بہت نیچے ہے. آئیے آپ ذرا اس فرش کا بھی جائزہ لیں. فرش کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے ان میں 3 یا 4 ورائٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک سفید سنگ مرمر ہے. مثال کے طور پر اس سے اگر 10 نقروں والے ستارے کو دیکھیں تو یہ ستارہ سفید سنگ مرمر کا بنا ہے.
इसके बाद ये काला संगमरमर बॉर्डर का काम कर रहा है। और ये जो छोटी सी आपको एक काइट नजर आ रही है, ये संगे बादल की बनी है। जबकि यहाँ एक और बड़ी काइट है जो 4 साइड्स पर मबनी है, ये जर्द पत्थर से बनाई गई है। अब इन इश्काल का अगर आप जायज़ा लें तो पहले तो ये 10 नुकरों वाला एक सितारा है, फिर 4 नुकरों वाली ये शक्ल है, 4 नुकरों वाली एक और शक्ल है, फिर 6 नुकरों वाली 6 साइड्स वाली एक और शक्ल नज़र आती है। और उसके अगर आगे आप आएँ तो 5 कोनों वाला एक सितारा या 10 इजला की शक्ल नज़र आती है। इसके अलावा हमें एक और मोटिव भी नज़र आता है जो इस किस्म की शक्ल पर मबनी है। यूँ कहिए कि बहुत सी ज्योमेट्री इश्काल को मिलाकर ये डेकोरेटिव फर्श तामीर किया गया है। तमाम बेस के ऊपर जो छतें हैं वो स्ट्रक्चरली डोमिकल हैं, लेकिन अंदर से उन्हें देखें तो वो तमाम की तमाम हमवार हैं। इसकी वजह यह है कि अंदर की जानब सस्पेंडेड सीलिंग्स दी गई हैं जो लकड़ी से बनाई गई हैं। इनके ऊपर कुछ डेकोरेटिव वर्क अब भी बाकी है, लेकिन ये डेकोरेटिव वर्क शाहजहां के दौर का नहीं बल्कि सिखों के दौर का है। इनमें जो मोटिव्स इस्तेमाल किए गए हैं वो मुस्ततील और मुरब्बों पर मबनी है, जबकि हर छत के ऐन बीच में एक 8 कोनों वाला सितारा है। उसके अंदर एक 8 इजला पर मुश्तमिल शक्ल है और उस 8 इजला की शक्ल के अंदर एक और 8 इजला की शक्ल है जिसमें एक आईना नस्ब कर दिया गया है। शुमाली सिमत में संगे मरमर की इस किस्म की जालियाँ नस्ब हैं जो एक बाउंड्री का काम करती हैं। इनमें जो मोटिव्स दिए गए हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो बड़ी दिलचस्प इश्काल देखने में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक शक्ल तो ये है जो हश्त पहलू है, इसके बार ये सितारे दे दिए गए हैं, इनके 1, 2, 3, 4 और 5 कोने हैं। इस तरह यहाँ अगर आप देखें तो हश्त पहलू एक और शक्ल नज़र आती है। यूँ कहिए कि इस यूनिट के गिरदा गिर्द सितारे भी हैं और इस किस्म की शक्लें भी हैं। और फिर यहाँ एक मुरब्बा है जो मख्फी सा है, इतना वाज़े नहीं है। इसी तरह अगर आप इस जानब आएँ तो यहाँ हमें एक क्रॉस शेप नज़र आती है। इस क्रॉस शेप के बार ये शक्ल दी गई है। इसके भी 6 इजला हैं, बड़ी शक्ल है, छोटी शक्ल है। ये इसमें भी 6 इजला, इसमें भी 6 इजला। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ एक और यूनिट बनता है जिसकी 8 अतराफ़ हैं। यूँ कहिए कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है जिसमें से बहुत से डिज़ाइन जन्म ले रहे हैं। इन तमाम डिज़ाइनों को एक फ्रेम में कैद कर दिया गया है और हर 2 फ्रेम के दरमियान इस तरह का एक मिनिएचर पिलर खड़ा है और उस मिनिएचर पिलर के ऊपर ये एक शेप दे दी गई है जो बड़े हद तक मेलन से मिलती जुलती है। हवा महल के शिमाल में जो सेंट्रल बे है, अगर आप वहाँ खड़े हों और 4 सिमत देखें तो आपको बड़े दिलकश नज़ारे नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर जनूब की सिमत हमें आरामगाह की खूबसूरत इमारत और नहर नज़र आती है। यहाँ से घूमकर अगर हम मगरब की सिमत देखें तो कॉर्नर में बना हुआ बुर्ज और वो सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जहाँ से उतरकर हम हयात बख्श के तख्ते को जाते हैं। मज़ीद दाएं जानब घूम जाइए तो आपको शुमाल की सिमत में 2 तख्ते यानी हयात बख्श और फैज़ बख्श का तख्ता नज़र आता है। ये गालबन सबसे ही खूबसूरत नज़ारा है। मज़ीद दाएं जानब घूमें और मशरक़ की जानब देखें तो हमें सीढ़ियों के पीछे कोने में एक बुर्ज नज़र आता है। इसी बुर्ज के नीचे शाही हमाम वाक़ है। हयात बख्श के तख्ते के लिए उतरने के लिए हमें 3 रास्ते मिलते हैं। ये उनमें से एक है और 15 सीढ़ियों पर मबनी है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि दाएं और बाएं जानब हमें सुर्ख पत्थर या रेड सैंडस्टोन की दीवारें नज़र आती हैं। बीच में तमाम सीढ़ियाँ भी उसी पत्थर से बनाई गई हैं। जब यहाँ इस मुकाम पर पहुँचते हैं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल छत नज़र आती है और फिर यहाँ एक रेड सैंडस्टोन का बीम नज़र आता है। वो यहाँ हमें एक ब्रैकेट नज़र आती है इस जानब भी और इस जानब भी, लेकिन ये ब्रैकेट सूडो ब्रैकेट है। दरअसल ये तमाम का तमाम बीम एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। इसके ऊपर एक और बीम है। यहाँ एक सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा मुरब्बा कमरा है। इसके इस जानब भी एक आल्कोव या डिप्रेशन है, इसके ऊपर भी वैसा ही बीम है जैसा कि इस जानब था। मेरे सामने की जानब भी वैसा ही बीम है, जबकि इस जानब
तकरीबन 5 या 6 फुट मोटी दीवार है। यहीं वो दरवाज़ा है जहाँ से अगर हम बाहर निकल जाएं तो हयात बख्श के तख्ते तक चले जाते हैं। इसके ऊपर भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल छत है और इस दरवाजे के ऊपर जो आपको चौखट नज़र आ रही है ये भी एक बीम पर मुनहसर है। ये दरवाज़ा हमें हयात बख्श के तख्ते पे ले आता है, लेकिन अगर हमने दूसरे 2 रास्तों का जायज़ा लेना है जो हमें इस तख्ते पर लाते हैं तो हमें इस सिमत में और आगे जाना होगा। दीवार के साथ चलते चलते अगर हम इसके वस्त में पहुंचते हैं तो ये एक बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आता है। इसी दरवाजे के पीछे ये बड़ा हाथा या ड्योढ़ी बनी हुई है। यहाँ आकर आप रुकें और दाएं जानब देखें तो आपको 22 सीढ़ियों की एक कतार नज़र आती है। ये सीढ़ियाँ शैलो हैं और यूँ मालूम होता है कि ये जानवरों के चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसी तरह अगर आप इस जानब देखें तो एक तवील रैंप है जो गालबन 25 या 30 डिग्री का एंगल बनाती है और ये तमाम की तमाम ब्रिक पेव्ड है और मुख्तलिफ मुरब्बों में तकसीम कर दी गई है। इसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के ब्रिक पैटर्न्स मिलते हैं। ये दोनों रास्ते ऊपर जाने के लिए खादम लोग इस्तेमाल या सर्विसमैन इस्तेमाल करते थे, जबकि वो जो पहली सीढ़ियाँ मैंने आपको बताई वो शहजादे शहजादियों और शाही ख़ानदान के लोगों के लिए वाबस्ता थी। इसके ऊपर जो छत है वो डूमिकल छत है। सामने दरवाजे के ऊपर जो छत है वो हॉरिजॉन्टल बीम्स पर मबनी है, जबकि इस जानब और इस जानब 2 बड़ी आर्चेस हैं, ट्यूडर आर्चेस, पॉइंटेड आर्चेस हैं और इस जानब भी एक बड़ी ट्यूडर पॉइंटेड आर्च है जिसके बीच में एक थोड़ा छोटा सा डिप्रेशन। सीढ़ियों और इस मुंडेर के दाएं और बाएं जानब जो आप एक पैरापेट वॉल देख रहे हैं इसमें आपको टेराकोटा का काम नज़र आता है। ये टेराकोटा का काम इंतहाई नाकिस है। ये दरअसल शाहजहां के वक्त का नहीं बल्कि रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के वक्त की यादगार है। शाहजहां ने यहाँ कभी संगमरमर की खूबसूरत जालीदार मुंडेरें तामीर करवाई थी जो यहाँ से उखाड़ कर अमृतसर मुंतकिल कर दी गई। ये कंस्ट्रक्शन जो रेड सैंडस्टोन में है ये भी बाद की है। आज के इस प्रोग्राम के साथ हम फरा बख्श के आखिरी प्रोग्राम के मरहले तक पहुंच गए हैं। ये इमारत इस तख्ते की आखिरी इमारत थी। इंशाल्लाह आज के बाद हम दूसरे तख्ते यानी हयात बख्श पर चलेंगे और वहाँ की इमारतों का जायज़ा लेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।